Today we are going to study the first chapter of economics, that is the story of village Palampur. Before starting the story or before starting the chapter, I would like to tell you that what the word economics stand for. Basically, economics means that how society uses its limited resources, or you can also define economics as the branch of science which deals with the production, distribution and consumption of goods and services. The story of village Palampur. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and we are going to learn this through a story of a hypothetical village called Palampur. That means that originally Palampur didn't exist. It is a hypothetical village with the help of which we are going to study about the basic concepts of production. Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities like small scale manufacturing, dairy, transport, etc., are carried out on a limited scale. These production activities need various types of resources: natural resources, man made items, human effort, money, etc. ये जो स्टोरी है पालमपुर की, इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जान लें प्रोडक्शन से रिलेटेड, और ये हम एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। पालमपुर जो है एक इमेजिनरी विलेज है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम इसकी हेल्प से जो है हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोडक्शन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। अगर हम पालमपुर की बात करें तो जो है फार्मिंग, खेती वहाँ की मेन एक्टिविटी है, और कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे कि आप छोटे छोटे लेवल पे जो स्मॉल स्केल पे जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर डेयरी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो लिमिटेड स्केल पे होती हैं। और ये जो सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे आपके नेचुरल रिसोर्स हो गए, मैन मेड आइटम हो गए, ह्यूमन एफर्ट हो गया, पैसे हो गए, मनी, ये सारी चीज़ों की जो है हमें ज़रूरत होती है। इंट्रोडक्शन. Palampur is a well connected with neighboring villages and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur. An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahpur. Many kinds of transports are visible on this road, starting from bullock carts, tongas, bogies, which are wooden carts drawn by buffaloes loaded with jaggery, and other commodities, to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors, and trucks. This village has about 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of the land in the village. Their houses, some of them are quite large, are made up of bricks with cement plastering. The SCs, means Dalits, comprise one third of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are made up of mud and straw. Most of the houses have electronic connections. Electricity powers all the tube wells in the fields and is used in various types of small business. Palampur has two primary schools and one high school. There is a primary health center run by government and one private dispensary where the sick are treated. पालमपुर जो है वो एक बहुत ही वेल कनेक्टेड विलेज है, जो अपने बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है अपने नेबरिंग विलेज और टाउन से। रायगंज जो कि एक बहुत बड़ा विलेज है, जो है वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, और एक जो है जितनी भी रोड है वो कनेक्ट करती है विलेज को रायगंज से, और साथ ही साथ एक नियरेस्ट टाउन है शाहपुर में, उससे भी कनेक्ट करती है। बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट जो है इस रोड पे आपको, जो वेदर रोड है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे बुलक कार्ट हो गई, टोंगा हो गया, या फिर जो बोगेज होते हैं, या फिर बोगी, और आप ये बोल सकते हो कि जो वुडन कार्ट है जो बफेलोस के थ्रू जो है ले जाई जाती है, और जो है जो कि जैगरी मतलब गुड़ से जो भरी होती है, और कुछ अदर कमोडिटीज़ हैं जो कि मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी के बारे में है। और जो विलेज है यहाँ पे अराउंड जो है 450 फैमिलीज़ रहती हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं। 80 जो है वो अपर कास्ट की फैमिलीज़ हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लैंड को ओन करती हैं। इनके जो हाउस होते हैं वो कुछ के तो काफ़ी बड़े हैं, और जो कि ब्रिक, ईंटें और जो है सीमेंट की प्लास्टरिंग हुई है। और जो SCs है, मतलब जो दलित हैं, वो टोटल पॉपुलेशन के जो है वन थर्ड के क्वान्टिटी में है। और साथ ही साथ जो है ये एक कॉर्नर जो है विलेज का, वहाँ पे रहते हैं, और छोटे घरों में रहते हैं, जो कि मड और स्ट्रॉ से मिलके बना हुआ है।
गाँव के ज़्यादातर घरों में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है और जो है इलेक्ट्रिसिटी से ही जो है जितने भी ट्यूबवेल्स हैं फील्ड में उसको पावर मिलती है और छोटे छोटे बिजनेस में भी वो यूज़फुल है। और पालमपुर में जो है 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है और वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है और साथ ही साथ एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे जो बीमार लोग होते हैं उनको जो है देखा जाता है। ठीक है। बेसिकली पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है जो कि हमें मतलब बताएगा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं विलेज में वो कैसे होती हैं और जो भी विलेजेस हैं हमारी इंडिया में वो वहाँ पे जो है फार्मिंग जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है और कुछ अदर भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि होती है। बट इन सब चीज़ों को जानने से पहले पहले हम ये जान लेते हैं कि कुछ जो जनरल थिंग्स हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड पहले हम उन्हें जान लेते हैं। Organization of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements for the production of goods and services. They are land, labor, physical capital and human capital. अगर प्रोडक्शन के मेन एम की बात करें तो इसका जो मेन एम होता है वो ये होता है कि हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें उसको बनाएं जो कि हम चाहते हैं। और बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोडक्शन की किसी भी गुड और सर्विस को बनाने के लिए। पहली होती है लैंड, दूसरी लेबर, तीसरी फिजिकल कैपिटल और चौथी जो है वो ह्यूमन कैपिटल। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। जो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो है लैंड यानी ज़मीन और साथ ही साथ जो अदर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि पानी हो गया, जंगल हो गया, जो भी मिनरल्स हो गए। नाउ आवर सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, दैट इज़ पीपल हु विल डू द वर्क. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. Other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for the production. जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारी वो है लेबर की, मतलब जो लोग काम करेंगे, ठीक है, जो हमारा काम करेंगे। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड वर्कर की ज़रूरत होती है कुछ नेसेसरी टास्क को करने के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ में जो है वर्कर्स की नीड होती है कि जिससे वो मैनुअली कोई काम कर सके। तो हर एक वर्कर जो है वो लेबर प्रोवाइड करता है जो कि प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होता है। The third requirement is physical capital, that is the variety of inputs required at every stage during production. जो तीसरी रिक्वायरमेंट होती है हमारी वो है फिजिकल कैपिटल, जो कि क्या होती है कि वैरायटी होती है इनपुट की जो कि रिक्वायर होती है हर स्टेज पे प्रोडक्शन के दौरान। फिजिकल कैपिटल इज़ ऑफ 2 टाइप्स, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ओके, फिजिकल कैपिटल आपकी 2 तरह की होती है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। Tools and machines ranges from very simple tools such as farmer's plow to sophisticated machines such as generator, turbine, computers, etc. Tools machine buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. जो tools और machines होती हैं जो कि इसकी जो रेंज होती है वो वैरी करती है सिंपल टूल से लेकर के, जैसे कि आपका फार्मर का प्लो हो गया, मतलब जो हल है फार्मर का, वो उससे लेकर के सोफिस्टिकेटेड मशीन जो कि हम लोग जनरेटर, टर्बाइन और कंप्यूटर यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में। ये सारे टूल्स और मशीन्स जो हैं आपके हम प्रोडक्शन में कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। Production require a variety of raw materials such as yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Also, some money is always required during making of the product. So, and also to make the payments and buy other necessary items. Raw materials and money in hand are called working capitals. प्रोडक्शन के लिए जो हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे कि अगर आप बुनकर की बात करो तो उसे यान की नीड होगी, अगर आप पॉटर मतलब कुम्हार की बात करो तो उसे मिट्टी की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ हमें कुछ पैसे की भी ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के दौरान, जिससे कि हम पेमेंट्स कर सकें और जो भी हमें नेसेसरी आइटम्स की रिक्वायरमेंट है उन्हें हम ख़रीद सकें। और रॉ मटीरियल और जो मनी होता है उनको हम मतलब इन हैंड में जो होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़ ह्यूमन कैपिटल। We will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use by ourselves or to sell in the market. Okay, these are called the human capital. हमारी चौथी रिक्वायरमेंट जो है वो है ह्यूमन कैपिटल और हमें नॉलेज की नीड होती है और साथ ही साथ एंटरप्राइज की भी, गाइडेंस की भी, जिससे कि हम लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को एक साथ लें और हम कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करें, या तो हम खुद के यूज़ के लिए या तो फिर हम उसको बाद में मार्केट में सेल कर सकें। इसे ही हम जो है वो ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production.
भी प्रोडक्शन होता है वो ऑर्गेनाइज होता है जब हम लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को कंबाइन कर देते हैं। इन चारों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।